हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इस युद्ध में हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या खोने को रह गया, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू जो इस युद्ध का कारण बना और इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक आज क्या है। According to World War One, the next point here, the causes of the war. The causes of the war, there is a 1914 to 1918. This is period time of the war. The World War One, which is started in August 1914, continued till November 1918. During this period, many important battles were fought, such as a Battle of Marine in 1914, Battle of Verdun, Battle of Semins, and Battle of the Jutland in 1916. The year is 1917, such two important developments. One was the entry of USA into the war in April, and second was the withdrawal of Russia from the war of November. That is the most important. There is a development in this period time here. In 1915, a British passenger ship Lusitania was sank off a Germany boat, killing of 128 USA civilians and who were traveling in the sea. The USS Santos took a very serious view on this. Santos, there is a rule-making department. There is the USA, and USA Santos took a very serious view on this incident. There is a 128 USA civilians is here die, and besides become a powerful nation, Germany would be pose a threat to the USA supremacy. And however, USA began to major supply of arms and the ammunition. There is a continuations of the war would result in economical advantage for the USA. And keeping all this in a view, she decided to join the war in 1917. That is important. Do you remember regarding about the October Revolution of 1917 in Russia? One of the main demand of the revolutionaries was peace. So immediately after the revolution under the leadership of Lenin, Russia and withdrew from the war and signed to peace treaty with Germany in 1918. By July 1918, Germany began to cause collapse, and Bulgaria and Turkey surrounded in their September and October respectively. There is the most important in this time. By the July 1918, Germany began to collapse, and Bulgaria and Turkey surrounded in the September and October respectively. On 3rd November in 1918, the Austrian Empire surrounded due to the spirit unrest in Austria. After similar revolt by the German people and German Empire, Wilhelm's II, the federal Holland and Germany was a proclaimed a republic. The new government signed as a armistice on 11 November 1918 and bearing and the end to the World War I. That is important here. In the course of the war, many new weapons such as a machine gun, poison gas, liquid fire, submarine and tank were used. There is this time of making a new weapon like that machine gun, poison gas, liquid fire, submarine and tank were used. New strategies as a military techniques were experimented by both sides. England used navals and economical is a blockade, tanks and air warriors. The French used trench as a welfare. Germany used a U-boat and submarine to sink ship under the sea. पूर्ण है प्रथम विश्व के अंतर्गत कि प्रथम विश्व युद्ध की कार्यविधि। अब प्रथम विश्व युद्ध के कार्यविधि किस प्रकार थी, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। और ये समय काल था जो था 1914 से लेकर 1918 तक। कहते हैं 9 अगस्त 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ वो नवंबर 1918 तक जारी रहा। यानी ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे और नवंबर 1918 में ये ख़त्म हुआ। और इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई,
जैसे 1914 मार्नो की लड़ाई, 1916 में बैडू की जो है शतरंज सेमो की लड़ाई, और जो है जूटो लैक्स की लड़ाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ इस समय लड़ी गई। कहते हैं 1917 जो है 1917 वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने देखा गया, यानी वर्ष 1917 वर्ष के दो महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा गया। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रविष्टि थी, यानी दूसरे नंबर में रूस का इस युद्ध से अलग होना। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने अंडर आना चाहता था इस युद्ध के अंतर्गत, और दूसरी नंबर में जो है रूस इस युद्ध से अलग होना चाहता था। 1915 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुई लिसोपेनिया के जर्मनी के यू बोट की डुबा दिया। अब देखिए अब कारण कहाँ से कहाँ बना। एक ब्रिटिश यात्री जहाज लिसोपेनिया के जर्मनी के यू बोट की डुबा दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक यात्रा कर रहे थे। अब ये सूत्रपात था पावरफुल अमेरिका का एंट्री की। अब उनकी हत्या हो गई थी। अमेरिकी सेनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, यानी अमेरिका में एक दल है उसे सेनेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप बीए आगे करोगे तो सीनेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो अमेरिका में सीनेट जो था महत्वपूर्ण दल था, जो सारे रूल रेगुलेशन वहाँ बनाया जाता है। यानी सीनेट का कार्य होता है कि सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और सीनेट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अलावा जर्मनी अमेरिका स्वच्छता के लिए खतरा पैदा कर सकता था, यानी जर्मनी अमेरिका स्वच्छता के लिए जो है अमेरिका का वर्चस्व के लिए एक खतरा पैदा कर सकता था। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था। अमेरिका सदैव ही यही कार्य किया है, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं युद्ध करता, वो हमेशा किसी भी देश को हथियार बना के अटैक करता है। जैसे आप यूक्रेन को भी आप समझ सकते हो, यूक्रेन तो बहुत छोटा था और युद्ध तो पहले ही ख़त्म हो जानी थी, लेकिन अमेरिका के सहयोग के कारण आज जो है ये काफ़ी पावरफुल बनता जा रहा है। और ये पावरफुल कहते हैं यूक्रेन नहीं बन रहा है, पावरफुल अमेरिका बन रहा है, क्योंकि वो सिर्फ गोला बारूद दे रहा है, और जैसे चाहे युद्ध जीता जाएगा वो सभी संसाधनों पे कब्जा कर लेगा। और यही कहानी जो था प्रथम विश्व युद्ध में भी वो ऐसा ही कर रहा था। वो अमेरिका जो है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था, यानी वो सिर्फ हथियार दे रहा था कि वो हथियार से वो युद्ध करे और दूसरे राष्ट्र को जो है ख़त्म करे। कहते हैं युद्ध की निरंतरता के कारण अमेरिका के आर्थिक लाभ में काफ़ी वृद्धि हो गई, यानी इस समय देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते ये समय होता है जब कोई भी राष्ट्र पावरफुल बनता है, और अमेरिका ने क्या किया, सारे हथियार गोला बारूद जो है राज्यों को देने स्टार्ट कर दिए और उनसे जो है मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। और निरंतर के कारण अमेरिका के आर्थिक लाभ में काफ़ी वृद्धि हो गई, और इन सब के ध्यान में रखते हुए उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला भी कर लिया, क्योंकि उसने क्या किया, धीरे धीरे सारे पैसे संपत्ति जो है इकट्ठा कर लिया। दूसरी बड़ी घटना रूस का युद्ध से अलग होना, यानी दूसरी बड़ी घटना थी कि रूस का जो है युद्ध से अलग हो जाना। पहली घटना तो अमेरिका के अपनी स्टोरी से समझ ली। कहते हैं 128 लोगों की बदला लेने के लिए इसने जो है युद्ध में नहीं कूदा, वो सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने और जो है विश्व में नंबर 1 बनने के होड़ में उसने ऐसा किया। क्या आपको रूस के 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में पढ़ा ही होगा। अक्टूबर क्रांति जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और इसका वीडियो भी है इसमें उपलब्ध, आप देख सकते हो। क्रांतिकारियों की मुख्य मांगों में एक शांति थी। क्रांतिकारी जो थे वो सिर्फ शांति चाहते थे। तो तुरंत लेनिन ने के नेतृत्व में क्रांति के बाद रूस युद्ध के अलग हो गया। लेनिन जो था नेता ने क्या किया, नेतृत्व में कारण क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया, और 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब सोचेगा लेनिन कौन है, और लेनिन के बारे में जानिएगा। तो ये 9th क्लास के जो बच्चों के हिस्ट्री के जो टॉपिक है उसमें लेनिन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो उसमें लेनिन जो था वो बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था, और ये युद्ध वो नहीं चाहता था, इसलिए जो था इस युद्ध से अलग हो गया। और 1918 में जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर की गई। लेनिन बहुत समझदार था, उसने इस युद्ध से जो है अपने आप को अलग कर लिया, और 1918 में जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। कहते जुलाई 1918 से जर्मनी पतन शुरू हुआ, लेकिन देखा जाए तो जुलाई 1918 से जर्मनी का पतन शुरू हो गया, और बुल्गारिया और तुर्की ने जो सितंबर और अक्टूबर में क्रमशः
आत्मसमर्पण कर दिया। यानी बुल्गारिया और तुर्की ने भी अपने आप को युद्ध से अलग करके जो है आत्मसमर्पण कर दिया। 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया के सम्राट ने ऑस्ट्रिया में व्यापक असंतोष के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, युद्ध जो था ऑस्ट्रिया से शुरू हुआ था और अंत में जो है ऑस्ट्रिया को ही जो है आत्मसमर्पण ही करना पड़ा। और जर्मन लोगों द्वारा इसी तरह के विद्रोह करने के बाद जर्मन सम्राट विलेम द्वितीय ने हालैंड भाग गए और जर्मनी एक गणराज्य घोषित हो गया। क्योंकि जनरली सी बात है, सम्राट विलेम द्वितीय जो थे हालैंड भाग गए और जर्मनी जो था एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। और नई सरकार पर जो है 11 नवंबर 1918 और विश्व युद्ध के अंत के लिए जो है युद्ध विराम पर हस्ताक्षर भी किए गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान मशीन गन्स, जहर गैस, तरल आग, पानडुब्बी और टैंक रूप में कई नए हथियार का इस्तेमाल किया गया। यानी देखा जाए तो ये वो दौर थी जहां पर नए नए हथियारों का जो है सूत्रपात किया गया था और नई रणनीतियों और सैन्य तकनीकी पक्षों द्वारा प्रयोग भी किया गया था। यानी देखा जाए तो ये समय काल था जहां पर लोगों ने हथियार के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ समझा। इंग्लैंड ने नौसेना और आर्थिक नाकेबंदी और टैंकों और हवाई हमलों का इस्तेमाल इस समय बेखूबी किया। यानी इंग्लैंड ने नौसेना, आर्थिक नाकेबंदी, टैंक और हवाई जो हमलों का बखूबी इसमें बहुत इस्तेमाल किया। और फ्रांसीसियों ने युद्ध में गहरी जो है इस्तेमाल रणनीति की और जर्मनी ने यू नाव और पनडुब्बी का समुद्र में जहाज डुबाने के लिए इस्तेमाल किया। यानी सब ने कुछ ना कुछ जो है इस युद्ध में प्रयोग किया जिससे उनकी वजह से वो बनाया जा सके।